Last class we have discussed on spermatogenesis. In this class we have to discuss about oogenesis. Although spermatogenesis and oogenesis both are the same in most of the aspect, but in case of oogenesis here we have to form a female gamete. Here the process of female gamete formation will take place, and this female gamete is ovum. But there are some differences in actually male and female reproductive system, or you can say that the formation of gamete. Initially, what we have learned in spermatogenesis, we will discuss with the same headline, and then we will discuss what are the different changes. So in spermatogenesis, we have discussed a structure known as spermatogonia. Here the word is known as oogonia. By nature it is 2x present in ovary. As in case of male, it is present in testis, spermatogonia. Here they are oogonia, known as 2x. Initially, this oogonia undergoes mitotic division, which I told you in case of spermatogenesis process. And due to mitosis, large number of these diploid structure will form. 2x will be formed. Now, after mitosis process, they are known as primary oocytes. Primary. In case of spermatogenesis, they are known as primary spermatogenesis. Primary spermatocytes. Sorry. So, after spermatogonia, in case of male, they are known as primary spermatocytes. In case of female, the oogonia will convert into primary oocytes. Now, from there, these primary oocytes, we can take anyone. The one of the primary oocyte is start for the division process known as meiosis, and here meiosis 1 take place. The another name is reduction division. Reduction division means number of chromosome reduced to half. So when meiosis 1 take place, two cell will be formed. One is larger, second one is smaller. They are by nature haploid, and they are known as, it is known as, the larger one is known as secondary oocyte, whereas this one is known as polar body or first polar body, whatever you can say. Why this will happen? Why one is the large cell? But in case of spermatogenesis, primary spermatocyte divide to form two secondary spermatocyte. But here one secondary oocyte, larger in size, and another is first polar body, where the cytoplasm or content is very less. After meiosis 1, in both these cells, second meiotic division take place, or meiosis 2 will take place. So, as we all know that meiosis 2 is nothing but a simple mitotic division. So this cell again is divided in a larger cell and a small cell, and because this first polar body is already small, this is small, like there is no problem. In some book you will find that this first polar body and the product of these are degenerated. We have no use. This secondary oocyte, when divided, it will form ovum, that is haploid in nature, and this will is known as second polar body, which also degenerate after some time. So finally our product will be formed, and that is ovum. So once one oogonia start, large number of primary oocytes will be formed, and from an ovary a single primary oocytes enter into the process of oogenesis, and this primary oocyte divide into secondary oocyte and first polar body. This first polar body later are degenerate. This secondary oocyte left out, which is haploid in nature because meiosis first was a reduction division. This secondary oocyte divided into ovum and second polar body.
This is the female gamete which will be formed. The question is, sir, if the process will take place like this, it is similar to spermatogenesis. The only thing is, in case of spermatogenesis, no first polar or second polar body will be formed. In that place, actually, secondary spermatocytes will form, and these secondary spermatocytes will divide to form spermatid or spermatozoa, which are further functioning. But here you have seen that this secondary oocyte having more cytoplasm or more content than this first polar body, because this ovum has to survive in the fallopian tube till the process of fertilization with sperm, and further the process of development to the zygote and embryo अप टू कब तक इसको ये न्यूट्रिशन चाहिए, जब तक कि इम्प्लांटेशन की प्रोसेस नहीं हो जाती. टिल द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन इट हैज रिजर्व फूड मटेरियल विद इट. Therefore, these secondary oocytes and ovum contain more nutrient and cytoplasm rather than first polar body and second polar. One thing. Second, the timing and development of oogonia, primary spermatocytes, secondary oocytes, polar body and ovum, here also a very crucial role will be played. कैसे होता है वो हम डिस्कस करते हैं. Actually, formation of mature female gamete or ovum, this is the process which is known as or carried out by a process known as oogenesis. But oogenesis is separately different or very much different from spermatogenesis. In oogenesis process or in female, the oogonia through which in which mitotic division take place, and due to mitotic division primary oocytes are formed. These oogonia are formed in ovary, or you can say that fetal ovary, means फीमेल बर्थ के पहले ही एम्ब्रियोनिक स्टेज में ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ओवरी दीज oogonia आर फॉर्म. कहने का मतलब यह है कि जब कोई फीमेल चाइल्ड माँ के पेट में होती है या माँ के जो है तो यूटेरस में डेवलप कर रही होती है, उस फीटल ओवरी स्टेज में ही ऑलरेडी oogonia का फॉर्मेशन हो चुका होता है. उसमें और कोई जो है तो क्या नाम से चाइल्ड बर्थ के बाद किसी तरीके का कोई भी अटैचमेंट या यूं कहिए कि कोई और डेवलपमेंट नहीं होता, यूं कहिए कि कोई भी और न्यू ऑर्गन जो है न्यू oogonia जो है तो फॉर्म नहीं होता. सो कैसे होता है, मीन्स फीटल ओवरी के कंडीशन में ही जितने oogonia बनने थे वो बन जाते हैं. और ये माइटोटिक डिवीजन भी चाइल्ड बर्थ के पहले ही हो चुका होता है. यानी कितने प्राइमरी oocyte बने हैं फीमेल बॉडी के अंदर, ये पहले से ही डिसाइड हो चुका होता है या डेवलप हो चुके होते हैं. चाइल्ड बर्थ के बाद ना तो oogonia डेवलप होता है और ना तो नए प्राइमरी oocytes बनते हैं. यानी बिफोर चाइल्ड बर्थ द नंबर ऑफ प्राइमरी oocytes आर प्रेजेंट इन द फीमेल बॉडी, दे कैन ओनली कैरी फॉरवर्ड द होल लाइफ ऑफ ए फीमेल. These millions of oogonia enter into the phase of mitotic division. मैं फिर से क्लियर कर दूं, चाइल्ड बर्थ के पहले यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही ये प्रोसेस हो रही है. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेज में जब ये मदर के बॉडी में चाइल्ड डेवलप हो रही है, फीमेल चाइल्ड, तब oogonia बन चुके हैं मिलियंस, और इनमें माइटोटिक डिवीजन होगा. और ये पूरा का पूरा प्राइमरी oocyte नहीं बनेगा, इसमें भी फर्स्ट यू कहना चाहिए कि प्रोफेस वन, फर्स्ट कहना चाहिए प्रोफेस वन इस स्टेज में आकर ये माइटोटिक डिवीजन जो है तो स्टॉप हो जाता है या मियोटिक डिवीजन जो है तो अरेस्ट हो जाता है. मैं फिर क्लियर कर दूं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था मैं जो बोल रहा था अभी. तो oogonia से प्राइमरी oocytes बनेंगे, ये माइटोटिक डिवीजन होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं. प्रोफेस वन से मेरा मतलब है कि ये प्राइमरी oocyte आगे फर्दर मियोसिस वन करने की जब कोशिश करेगा तो मियोसिस वन का भी प्रोफेस वन का जो फेस है वो फेस है जिसमें आके ये अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है, इसके आगे प्रोसेस नहीं होती. इस स्टेज तक की प्रोसेस
एम्ब्रोनाइक डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। मतलब यहाँ तक प्राइमरी oocyte बन जाना, मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होना और प्रोफेज 1 में आके अरेस्ट हो जाना, ये पूरी की पूरी प्रोसेस कहाँ तक होती है? इसके बाद ही चाइल्ड बर्थ हो। इसके बाद यहीं पर क्या होता है? चाइल्ड बर्थ होता है। और ये कैसा कैसा चाइल्ड होगा? स्वाभाविक है, गर्ल चाइल्ड होगा। और इसके बाद ये मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 फेज कब तक चलती रहेगी? यानी प्राइमरी oocyte में कौन सी स्टेज में रहेगा प्राइमरी oocyte? मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज 1 फेज। और ये स्टेज तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक कि ये गर्ल चाइल्ड प्यूबर्टी स्टेज पे नहीं पहुंच जाएगी। यानी इस स्टेज में वो अरेस्ट हो जाती है प्रोसेस। प्राइमरी oocyte का मियोसिस 1 के प्रोफेज में अरेस्ट होती है बिफोर चाइल्ड बर्थ। वो चाइल्ड बर्थ होने के बावजूद प्यूबर्टी स्टेज आते आते तक भी ही वो इसी स्टेज में रहती है, क्योंकि प्यूबर्टी स्टेज आने के बाद आगे की जो है तो प्रोसेस होनी है। तो ये इस स्टेज में यानी प्राइमरी oocytes का डिवीजन स्टार्ट हो गया। प्राइमरी oocyte के डिवीजन के मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में आके वो अरेस्ट हुआ। उसके बाद इसी स्टेज में वो रुका रहेगा। कब तक? इवन तो चाइल्ड बर्थ भी हो जाएगा बच्चे को, और चाइल्ड बर्थ होने के बाद गर्ल का वो 10 से 12 साल का जो एडोलेसेंट फेज है, प्यूबर्टी स्टेज है, वहां तक इसी स्टेज में रहेगा। अब जब प्यूबर्टी फेज खत्म होगा तब आगे यही प्राइमरी oocyte जो मियोसिस 1 प्रोफेज में आके रुके हुए हैं वो आगे की प्रोसेस करें। बिकॉज ये पूरी की पूरी प्रोसेस ओवरी के अंदर हो रही है। जैसे हमने पहले ही कहा कि ये तो फीटल डेवलपमेंट ओवरी के अंदर हो रही है। इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ कुछ इस तरीके की सेल का फॉर्मेशन, जो सराउंडेड सेल, ग्रेनुलोसा सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और ये ग्रेनुलोसा सेल के फॉर्मेशन होने के कारण इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहने लगते हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या कहने लगते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। ये स्टेज भी बढ़ती जाएगी। ये कौन सी स्टेज है? प्राइमरी oocyte की वो स्टेज है जिसमें बच्चे का चाइल्ड बर्थ तो हो गया, यानी बच्चा चाइल्ड बर्थ हो गया है और वो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में अरेस्ट है। और इस स्टेज में चूंकि चाइल्ड बर्थ के बाद और प्यूबर्टी स्टेज आते तक इन प्राइमरी oocyte के चारों तरफ एक ग्रेनुलोसा की लेयर बनती हुई चली जाएगी। और इसी ग्रेनुलोसा की लेयर के कारण इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहने लगेंगे? प्राइमरी फॉलिकल। हालांकि इस पूरी की पूरी प्रोसेस के दौरान बहुत सारे प्राइमरी oocytes या प्राइमरी फॉलिकल डिजनरेट भी होते हैं, खत्म भी होते हैं। फाइनली प्यूबर्टी स्टेज आते आते तक एक फीमेल में नॉर्मली 60 to 80,000 इस नंबर में जो है तो क्या नाम से प्राइमरी oocytes बचते हैं, जो प्यूबर्टी के बाद आगे ओवम फॉर्मेशन के लिए अवेलेबल होते हैं किसी नॉर्मल फीमेल में। कुछ में कम भी हो सकते हैं, कुछ में बढ़ भी सकते हैं। तो नॉर्मल फीमेल में यदि देखें तो ये वो नंबर है जहां पर आके रेस्ट करता है कौन? प्राइमरी oocyte। नाउ these primary follicles composed of granulosa cells, they further surrounded by some more layer of granulosa, and after this they are known as secondary follicle. They are known as secondary follicle. After more layer are covered around it. Now this is the stage where the inside this one a primary oocyte rest at prophase 1 after meiosis 1 जो हुआ था वहीं से आके अभी तक रुका हुआ है। यहाँ ये ग्रेनुलोसा लेयर की ये लेयर बनी हुई है और फाइनली सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज तक आप पहुंच गए। सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज के बाद एक टर्सरी फॉलिकल स्टेज आती है जिसमें ये आपका प्राइमरी oocyte हो गया। और प्राइमरी oocyte के चारों तरफ जो ग्रेनुलोसा लेयर है वो तो बनी हुई है, लेकिन धीरे धीरे वो साइज में बड़ी होती जाती है और बड़ी होने के कारण अंदर की तरफ एक कैविटी बन जाती है। बाद में ये कैविटी जो होती है वो एक फ्लूइड फील्ड कैविटी बन जाती है, और जब वो फ्लूइड फील्ड कैविटी बनने लगती है तब उसे कहते हैं हम एंट्रम। तो एंट्रम का फॉर्मेशन, ए फ्लूइड फील्ड कैविटी फॉर्म नोन एज एंट्रम। एंट्रम बनने के साथ साथ यहाँ पर दो लेयर बनती हैं। अंदर की तरफ इंटरना, या यूं कह लीजिए आपकी इनर थीका इंटरना, अंदर की तरफ इंटरना और बाहर की तरफ एक्सटर्ना, इस तरीके की दो लेयर बनती है। इसके साथ साथ ये जो प्राइमरी oocytes हैं, प्राइमरी oocyte अभी तक जो है तो क्या नाम से प्रोफेज सेकेंड स्टेज में थे। टर्सरी फॉलिकल
टर्सरी फॉलिकल वो स्टेज है जिसमें ये प्राइमरी oocyte, ये जो प्राइमरी oocyte है, ये जो है तो क्या नाम से तेजी से डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं, और डेवलप होने के साथ साथ ये जो प्रोफेस 1 में जो अभी तक स्टोर थे, ये अपना प्रोफेस 1 के बाद के जो आगे का मियोसिस 1 है उसे पूरा करते हैं। और मियोसिस 1 जब कंप्लीट करेंगे तो क्या बनेगा, हमने बताया था कि प्राइमरी oocyte जब मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा तो 2 सेल बनाएगा, एक कहलाएगी क्या, सेकेंडरी oocyte, और दूसरी बनाएगी फर्स्ट पोलर बॉडी। हमने शुरुआत में ही आपको ये चीज़ क्लियर की थी कि जब भी ये टर्सरी कह रहा हूँ, प्राइमरी oocytes डिवाइड होंगे मियोसिस 1 से, मियोसिस 1 फर्स्ट प्रोसेस, तो सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो ये मियोसिस फर्स्ट का कंप्लीट होना, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी में कन्वर्ट होना और इसका डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें कौन से स्टेज में चलती हैं, टर्सरी फॉलिकल स्टेज में चलती हैं, जो ओवरी के अंदर ही हो रहा है। इज देयर एनी डाउट? नाउ अब ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया सभी को। ये प्राइमरी oocyte था, 2x था बाय नेचर, और ये मियोसिस 1 के प्रोफेस 1 में अटैच था ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। चाइल्ड बर्थ होने के बाद आगे प्यूबर्टी स्टेज आते आते तक कोई प्रोसेस नहीं होती। प्यूबर्टी स्टेज जैसे ही कंप्लीट होती है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्यूबर्टी, मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट होने की कगार पे आता है। और इसमें क्या होगा कि ये प्राइमरी oocyte डिवाइड होगा सेकेंडरी oocyte जो बाय नेचर हैप्लॉइड होगा, और फर्स्ट पोलर बॉडी जो टीनी बॉडी है वो भी हैप्लॉइड होगी। लेकिन ये स्टेज कब वो अटेंड करेगा, जब वो टर्सरी फॉलिकल स्टेज में आएगा। इज इट क्लियर? तो चाइल्ड बर्थ वाली स्टेज कब थी, प्राइमरी oocyte की स्टेज कब थी, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। और ये स्टेज कब आई सेकेंडरी oocyte की, टर्सियर फॉलिकल्स में, और वो भी कब, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी ये स्टेज पहुंचेगी, और ये कहां पर होगी, टर्सरी फॉलिकल के पोजीशन पे आके। तो हमने देखा प्राइमरी फॉलिकल जहां बनना शुरू होते हैं, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनते हैं, एंट्रम का फॉर्मेशन होगा, और जब एंट्रम के साथ साथ ये प्रोसेस होगी, तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि टर्सरी फॉलिकल खत्म होते होते तक सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ हमने ये देख लिया यहाँ तक टर्सरी फॉलिकल में ये प्राइमरी oocytes हैं, एंट्रम है, टर्सरी फॉलिकल स्ट्रक्चर इंटरनल और एक्सटर्नल। मियोसिस 1 कंप्लीट होते होते तक हमने ये देखा कि प्राइमरी oocyte डिवाइड हो गया सेकेंडरी oocytes में और फर्स्ट पोलर बॉडी में। जहाँ तक रही बात इस स्टेज की, तो फर्स्ट पोलर बॉडी वो स्टेज है कि बहुत सारी बुक्स में आपको मिलेगा कि ये यहीं पे डिजनरेट हो जाता है, आगे इसका कोई काम नहीं है। तो यदि डिजनरेट हो गया तो बचा नहीं, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, टीनी स्ट्रक्चर। मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म कौन कैरी करता है, सेकेंडरी oocyte, क्योंकि इसको आगे फर्दर काम करना है। जैसे ही ये टर्सरी स्टेज खत्म होती है, ये जो ग्रेफियन स्ट्रक्चर है ये कहलाने लगता है ग्रेफियन फॉलिकल्स। ये टर्सरी से कहलाने लगता है क्या, ग्रेफियन फॉलिकल, या कुछ बुक में इसका नाम मिलता है मैच्योर फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल इसलिए क्योंकि ये वो स्टेज है जिस स्टेज में ये फॉलिकल जो है तो क्या होता है, रैप्चर होता है, टूटता है। और जब ये टूटता है तो ये सेकेंडरी oocytes क्या होते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं। और जब ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है, जो कि बाय नेचर 2x है, बाहर निकलते ही साथ ये सेकेंडरी oocyte अपने चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनाता है जिसे कहते हैं जोना पेलुसिडा। और इसी जोना पेलुसिडा लेयर के साथ और एक हैप्लॉइड 2x लिख दिया हूं मैं इसको, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम के साथ ये सेकेंडरी oocyte जो है तो क्या नाम से रिलीज होगा। ये रैप्चर होगा, ग्रेफियन फॉलिकल यहाँ से टूटेगा, और टूटेगा तब ये ओवरी से बाहर निकलेगा। एक्चुअली में ओवम नहीं रिलीज होता ओवरी से, सेकेंडरी oocyte स्टेज में ही ओवरी से ये रिलीज हो जाता है। और यही सेकेंडरी oocyte जो है वो कहाँ पहुँच जाता है, एम्पुला रीजन में पहुँच जाता है। यदि आपको याद हो मैंने फीमेल स्ट्रक्चर जो बताया था, एम्पुला रीजन में। और ये सेकेंडरी oocyte स्टेज में ही एम्पुला में मौजूद होता है टिल जब तक इस सेकेंडरी oocyte को कोई स्पर्म ना मिले।
एक्चुअली में जो मियोसिस सेकेंड डिवीजन होता है किसी भी फीमेल के बॉडी में या ओवम में, वो तभी पॉसिबल होता है जब स्पर्म की एंट्री ओवम में हो जाए। और ओवम में क्या, सेकेंडरी oocyte में एक्चुअली में स्पर्म की एंट्री होती है, ओवम में नहीं होती। तो जब सेकेंडरी oocyte में स्पर्म की एंट्री होती है तब इस सेकेंडरी oocyte का ये न्यूक्लियस मियोसिस सेकेंड डिवीजन में जाता है और ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो एक्चुअली में जो अब आप ओवरी में जब में केस में पढ़ेंगे तो एक्चुअली में सेकेंडरी oocyte स्टेज में ही ये जो है तो क्या नाम से रिलीज हो जाएगा। और ये जो रिलीज है ये इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, ओव्यूलेशन। यही प्रोसेस क्या है, ओव्यूलेशन, जो 14th डे में जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है और ये सेकेंडरी oocyte स्टेज में ये जाकर वहां स्टोर होता है। आई थिंक द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। ये वही मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल हैं या ग्रेफियन फॉलिकल या मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल जिनसे ये सेकेंडरी oocyte स्टेज में निकलता है। और बाद में आप अभी जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो पाएंगे यही वो स्ट्रक्चर है जहां पर बाद में कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है जो बाद में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सो ये सेकेंडरी oocyte स्टेज में रिलीज होना और इसी स्टेज में कहां तक पहुंच जाना, फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाना। यदि आपको याद हो तो हमने इस तरीके से फिब्री बनाई थी, तो यहां से ये रिसीव होगा और यहां पर आके ये सेकेंडरी oocyte स्टेज में रुक जाएगा। यानी ओवम के फॉर्म में रिलीज नहीं होता, ओवरी से सेकेंडरी oocyte स्टेज में ही रिलीज होकर एम्पुला में स्टोर होता है। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। कल बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में।